Question number 116. Magnesium reacts with dilute hydrochloric acid. Which statement about the particles in the reaction is correct? Okay. Increasing the concentration of dilute hydrochloric acid increases the collision rate. Yes, concentration की बात है. But has no effect on the activation energy. Yes, this is correct. Activation energy को पे कोई effect नहीं है. This is correct. Then increasing the concentration of dilute hydrochloric acid increases the collision rate and the activation energy. Activation energy को नहीं change करा, so this is wrong. Increasing the temperature of the reaction increases the activation energy. ये भी increase नहीं करता activation energy को. अलबत्ता particles को ये दे देता है इतनी energy को वो react कर सकें. Okay, so this is wrong. Increasing the temperature of the reaction causes all collisions to lead to a reaction. No, ये मतलब maximum particles को दे सकते हैं energy और also it depends upon the temperature कि हम कितना increase करें. So सारे all collisions to lead to a reaction, so all collisions की तो बात नहीं है. Okay, more frequent वाली बात होती है. So this is again wrong and option A was correct. Now question number 117. So two molecules of nitrogen dioxide combine in a reversible reaction to form dinitrogen tetroxide. The forward reaction is exothermic. ये हमारे पास बना हुआ है equation. Which changes in reaction conditions would both increase the amount of this at equilibrium? Amount हम yield की बात करें, rate की बात नहीं करें. Okay. Decreasing the temperature and decreasing the pressure. Okay. Temperature तो हमें decrease ही चाहिए. बताऊँ क्यों? क्योंकि ये exothermic reaction है. ठीक है. Increasing वाले हम काट देते हैं. अब pressure में किस तरह से देखेंगे? Number of moles से. यहाँ कितने moles से 2, यहाँ कितने 1 2 to 1 की ratio. अगर मैं pressure अगर मुझे इसकी dinitrogen tetroxide यानी product की मुझे yield ज़्यादा चाहिए तो मैं क्या करूँगी? Pressure को increase करूँगी. क्यों? क्योंकि जब हम pressure increase करते हैं तो equilibrium less number of moles वाली side पे shift हो जाता है. So it means कि यहाँ less number of moles है product side पे, तो यहाँ पे shift हो जाएगा equilibrium. So I have to increase the pressure or decrease the temperature. Next question. A solution of iron 3 sulfate reacts with aqueous sodium hydroxide to form a red brown precipitate. What is the balanced chemical equation using the state symbols for this reaction? Solution means aqueous. Okay. अब यहाँ पे ये liquid वाले हम cancel out करें. Liquid means कि वो एक मतलब proper चीज़ है यानी water हो तो हम उसको liquid कहते हैं. ये aqueous है. Okay. Solution means aqueous. So aqueous हो गया. ठीक है. अब हम दूसरा देख लेते हैं. aqueous sodium hydroxide चलिए aqueous हो गए. Okay. और इससे ये दो चीज़ें form हो रही हैं. State symbol same है. अब मुझे balancing check करनी है. Okay. So balancing let's check. अच्छा पहले iron ये जो है 2 sulfate. Iron 2 means iron 3 sulfate है sorry. Fe 3 positive. Sulfate क्या होता है? SO4 2 negative. Okay. यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो गई, हो जाएगा Fe2SO4 क्या हो गया? थ्राइस. ये वाला करेक्ट है. सो ए भी रॉन्ग हो गया. इन्होंने FeSO4 किया हुआ है. दिस मीन्स कि ये आयरन 2 पॉजिटिव वाले की बात करें थे. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 119. The Haber's process is a reversible reaction. The reaction has 30% yield of ammonia. The volume of gas, which volume of gas measured at room temperature and pressure is obtained by reacting 0.75 moles of hydrogen with excess nitrogen. Okay. Excess nitrogen means कि nitrogen in excess present है. यहाँ पे मुझे पहले मोल रेशो यूज़ करनी है ताकि अच्छा मैं नाइट्रोजन को यहाँ कंसीडर नहीं करी वो एक्सेस में. ठीक है. लेकिन मैं इसके मोल्स यूज़ करके मोल रेशो करूँगी और मुझे इससे इसके मोल्स मिल जाएंगे. ठीक है. मैं देखूँगी 30% यील्ड ऑफ अमोनिया मुझे चाहिए. ठीक है. पहले मैं टोटल यील्ड कैलकुलेट करी हूँ थ्योरेटिकल यील्ड. ठीक है. और एक्चुअल यील्ड में 30% ऑफ दैट थ्योरेटिकल यील्ड करूँगी तो मुझे मिल जाएगी एक्चुअल यील्ड. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम परफॉर्मिंग मोल रेशो सॉरी. सो दिस इज नाइट्रोजन इज इन एक्सेस. ये 3:2. देन हाइड्रोजन है मेरे पास 0.75 मोल्स एंड इसके दिस वाज H2 एंड दिस वाज NH3. ठीक है. NH3. इसके मेरे पास एज x है तो 3x is equals to 2 into 0.75. ये हो जाएगा 1.5 I guess. 0.75 into 2 is yes 1.5. So 3x is equals to 1.5. सही है. और x is equals to 1.5 divided by 3. Divided by 3 this is 0.5. So x इसके मोल्स जो हैं ये 0.5 आ गए मेरे पास अमोनिया के मोल्स. ठीक है. अब मुझे अमोनिया की वो कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम ऑफ गैस. सो मैं यहाँ करती हूँ नीचे में पता करके वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24 डेसीमीटर क्यूब. तो मुझे आंसर भी डेसीमीटर क्यूब में मिलेगा. 0.5 into 24 is equals to 12 डेसीमीटर क्यूब. ठीक है. अब मेरे पास जो ऑप्शन है ना वो सेंटीमीटर क्यूब में ऐसी, तो मैं इसको सेंटीमीटर क्यूब में डेसीमीटर क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब जाने के लिए मैं क्या करती हूँ मल्टीप्लाई बाय 1000. सो ये हो जाएगा 12,000 डेसीमीटर क्यूब. लेकिन ये क्या है? तो थ्योरेटिकल यील्ड है. मेरे पास जो एक्चुअल यील्ड आ रही है वो कितनी है? द रिएक्शन हैज 30% यील्ड ऑफ अमोनिया. यानी मुझे जो एक्चुअल यील्ड मिली है वो इस जो मुझे मिलनी चाहिए थी उसकी 30% है. सो आई कैलकुलेट 30% ऑफ ये 12,000. सो ये क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाइड इंटू 1000. सो ये यहाँ से कैंसिल हो गया. 30 into 1200 is 3 12s are 36 और ये 0 0 so 3600 सेंटीमीटर क्यूब. ओके. सो अच्छा सॉरी यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लिखना था. सो आंसर मेरे पास क्या आ गया 3600 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स ऑप्शन ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 120. विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ केमिकल चेंज. ओके. इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है? ये कोई और सब्सटेंस है, ये कोई और सब्सटेंस है. नहीं सॉरी ये अलग है और ये जो डार्क वाली है ये अलग है, जो लाइट वाली है अलग है. ठीक है. सो दिस मीन्स कि ये स्टेट चेंज है सिंपली. ठीक है. पहले लिक्विड से सॉलिड हो रहा है क्योंकि वो कंबाइन हो रहा है. बस ये है एक ही चीज़. ओके. सो दिस इज नॉट अ केमिकल चेंज, दिस इज अ फिजिकल चेंज. इसमें भी यही हो रहा है. ऑलमोस्ट लिक्विड से वो गैशियस फॉर्म में आ रहा है. एक ही चीज़ है. सो अगेन दिस इज अ फिजिकल चेंज. इसमें क्या हो रहा है? ये पहले ये मतलब ये मुझे डिफ्यूजन लग रही है. जैसे अगर मैं देखूँ तो फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन ले लूँ O2 ये नाइट्रोजन है. ये अब क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रही है और थोड़ा दूर हो गए. सही है. तो हमने या तो वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया होगा कुछ इस तरह से. ठीक है. सो ये भी नहीं. अब यहाँ क्या हो रहा है? दो डिफरेंट चीज़ें थी वो कंबाइन हो रही है. क्या हो रहा है? कंपाउंड फॉर्मेशन हो रही है. सो दिस इज अ केमिकल चेंज. Next question. The rate of reaction between calcium carbonate chips and hydrochloric acid is studied by collecting the volume of gas released in 1 minute at different temperatures. सही है. A graph of rate of reaction against temperature is shown. ये rate of reaction मुझे किससे पता चल रहा है? सेंटीमीटर क्यूब ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस पर मिनट और ये टेम्परेचर में जैसे जैसे इंक्रीज करें उसका मतलब क्या हो रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है. अब विच स्टेटमेंट फुली एक्सप्लेन्स वाई. तो फुली एक्सप्लेन्स की मुझे दो चीज़ें चाहिए. कोलाइडिंग पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज़्यादा है और वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज सो दी कोलिजन्स आर हार्डर नहीं है फास्टर है. ठीक है. दिस इज रॉन्ग. हार्डर यानी वो ज़्यादा फोर्स से रिएक्ट करें. ऐसा नहीं है. Okay. The number of collisions between particles increases. ये
ये करेक्ट है, लेकिन इनकम्प्लीट सा लग रहा है, एनर्जी की बात नहीं हुई। द एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड फॉर द पार्टिकल्स इज रिड्यूस्ड, ये बिल्कुल गलत है। देयर आर मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन्स बिटवीन पार्टिकल्स विद इनफ एनर्जी टू रिएक्ट, ये कंप्लीट बात है। सो ऑप्शन डी इज द बेस्ट वन। क्वेश्चन नंबर 122, द इक्वेशन शोज द इक्विलिब्रियम बिटवीन डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये सिमिलर सी है। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। Okay. At equilibrium, the concentrations of the reactant and product are constant. Yes. At equilibrium, the rate of forward and reverse reaction is equal. Yes. When the pressure is increased, a dark brown color is seen. Okay, ये brown है। सबसे पहले तो हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, हम लेट्स सी उसका इफेक्ट। यहाँ मोल्स कितने हैं, 1, यहाँ क्या है 2 मोल्स। ओके, सो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करती हूँ तो लेस नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे शिफ्ट हो रहा है, यानी इस साइड पे बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हो गया, यानी ब्राउन से ब्राउन कलर उसका फेड होता जाएगा, वो ब्राउन टू कलरलेस मूव करे। सो ब्राउन कलर डार्कर कब होता है, जब ये रिएक्शन फेवर होता है, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हम प्रेशर इंक्रीज करें, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ये है ब्राउन पार्टिकल्स यहाँ पे। अब जब हम वॉल्यूम डिक्रीज करें तो ब्राउन पार्टिकल्स कितने करीब हो गए कि उनका कलर डार्कर हमें नजर आ रहा है। ओके, सो दिस इज रॉन्ग, कलर लाइटर हो जाएगा। देन व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, अ डार्कर ब्राउन कलर इज सीन। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। ऑल्सो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा और प्रोडक्ट यील्ड इंक्रीज होगी एंड डार्कर ब्राउन कलर विल बी सीन। ठीक है, सो ऑप्शन सी वाज रॉन्ग, बाकी तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशंस फॉर 2 रिएक्शंस ऑफ आयोडाइड आयंस आर शोन। एक ये इक्वेशन और एक ये रिएक्शन, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, फर्स्ट ओके, बोथ रिएक्शंस आर रिडॉक्स, नीदर रिडॉक्स, या एक रिडॉक्स है, कौन सा वाला रिडॉक्स है, तो ये हम देखते हैं। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है कि ये तो मुझे आयनिक इक्वेशन लग रही है, आयनिक इक्वेशन टू सॉल्ट फॉर्मेशन की होती है, तो इसमें रिडॉक्स कुछ भी नहीं है। सो दिस इज नॉट रिडॉक्स, ये तो सॉल्ट फॉर्मेशन हो रही है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा है। यस, दूसरी वाली क्या है, अच्छा टू, बोथ वाली कैंसिल आउट हो गई और रिएक्शन 2 वाली कैंसिल आउट हो गई। इनमें से मुझे लगता है कि एक करेक्ट हो सकते हैं, या तो नीदर वाला होगा या रिएक्शन 1 की हो जाएगी। सो लेट्स चेक। रिएक्शन 1 की ये है, आई नेगेटिव से ये इसकी 0 हो गई क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में। सो ये क्या हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -1 to 0। सो इंक्रीज इट मीन्स कि ये ऑक्सीडेशन है, एंड इधर H2O2 से OH नेगेटिव फॉर्म हो रहा है। OH नेगेटिव ये न्यूट्रल है, फ्रॉम 0 to -1। इसका क्या मतलब हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन। अब इस इक्वेशन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, तो मींस कि ये रिडॉक्स रिएक्शन, ओनली रिएक्शन 1 इज रिडॉक्स, इधर यानी दोनों नहीं है, ये गलत हो गया। और ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 124, element Y reacts with copper 2 oxide to form copper. Element Y will not react with zinc oxide. It means कि वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, जिंक के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी इट रिएक्ट्स विद कॉपर 2 ऑक्साइड, तो वो Y ऑक्साइड फॉर्म करेगा, कॉपर को अलग कर लिया, इट मींस कि इसको डिस्प्लेस कर रहा है, ये कॉपर है, सो Y इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, लेकिन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, सो इट मींस कि जिंक इज मोर रिएक्टिव, है ना। तो अब हम चेक करते हैं मोस्ट रिएक्टिव। फर्स्ट से हमने इनको अलाइन करना, मोस्ट रिएक्टिव क्या था, Zn, फिर हमारे पास Y था, फिर Cu था। ओके, सो ये हो गया ऑप्शन डी, Zn, Y एंड Cu, कॉपर। देन क्वेश्चन नंबर 125, अमोनिया मैन्युफैक्चर बाय द हेबर्स प्रोसेस। ये है, कंडीशंस हमने बतानी थी, टेंपरेचर मेरे पास 450 होता है और उससे ये हो जाएगा 400, एंड प्रेशर मैं 200 यूज़ करती हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे ऑप्शंस कर दिए 100 या 300 वाली। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं देखूँगी कि हम प्रेशर हाई यूज़ करते हैं डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ मोल्स कम है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यानी 2:1 की रेशो। प्रोडक्ट साइड पे कम मोल्स है तो मुझे प्रेशर ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा ताकि फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो जाए, लेस नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे शिफ्ट हो जाए, इक्विलिब्रियम, राइट। सो मैं बस सिंपली ये देखते हुए हाई प्रेशर यूज़ कर रही हूँ, सो इट्स बी। वैसे मैं 200 इससे यूज़ करती हूँ, मतलब हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो प्रेशर 300 का होता है वो इकोनॉमिकल नहीं होता, मतलब वो प्रोवाइड करना, वो सब कुछ मैनेज करना मुश्किल होता है इंडस्ट्रीज़ में। सो बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, lead to nitrate PbNO, अच्छा ये जो भी है, it reacts with potassium iodide Ki to form a yellow precipitate PbI2 and a soluble salt this. What is the reaction, what is the equation for the reaction? Okay, so this reacts with this to form this and this. अब मुझे बैलेंसिंग चेक करनी है। सो पोटेशियम मेरे पास एक है, यहाँ 2 क्या गलत हो गया, यहाँ एक पोटेशियम और एक पोटेशियम, देन NO3, यहाँ ट्वाइस NO3, यहाँ एक दफ़ा ये गलत हो गया। फिर क्या है कि यहाँ पे 2 PbPb यहाँ पे एक है, सो ये भी गलत हो गया, 1 PB NO3 ट्वाइस है, 2 NO3 हो गया, 2K और I2 और ये, यस दिस इज करेक्ट, ऑप्शन डी बैलेंस्ड है। क्वेश्चन नंबर 127, which list contains only chemical changes, melting, evaporating, dissolving, ये तीनों फिजिकल है। रस्टिंग, फ्रीजिंग, सबलाइमिंग। रस्टिंग इज केमिकल, लेकिन फ्रीजिंग और सब्लिमेशन ये दोनों फिजिकल है, सो रॉन्ग हो गया। न्यूट्रलाइजेशन इज केमिकल, पॉलीमराइजेशन केमिकल, कंबशन केमिकल, तीनों केमिकल है। फिर बॉइलिंग, कंडेंसिंग, डिस्टिलेशन, ऑल 3 आर फिजिकल, तो ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 128, the results of adding excess marble chips calcium carbonate to hydrochloric acid at 50 degree Celsius and 30 degree Celsius are shown. कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करें, मतलब मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है। ओनली द टेम्परेचर इज चेंज्ड। ओके, व्हिच रो डिस्क्राइब्स द रिएक्टिंग पार्ट एंड पार्टिकल्स एट 30 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू दोज एट 50 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस में हमने ये रिएक्शन परफॉर्म किया था, तो हमारे पास कम वॉल्यूम ऑफ गैस थी, क्योंकि ये क्या है, सॉरी रेट स्लोअर था उसकी प्रोडक्शन का, एंड पे सेम ही हो रहा है, ये सेम 50 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म किया तो हमारे पास जल्दी जल्दी फॉर्म गए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये रेट का है, तो इसमें हम रेट के हवाले से बात करें, यील्ड वगैरह वो क्या होता है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, केमिकल, एनर्जेटिक्स, उन टर्म्स में बात करें। विच रो डिस्क्राइब्स द रिएक्टिंग पार्टिकल्स एट 30 कंपेयर टू दोज एट 50 में क्या हुआ है, हमने 30 से 50 में लाया, टेम्परेचर इंक्रीज क्या होता है, हायर कोलिजन रेट एंड कोलिजन एनर्जी भी हायर, सो इट्स ऑप्शन ए। जस्ट रियलाइज कि उन्होंने बोला है कि हमने 30 डिग्री में बताना है, 50 डिग्री के साथ कंपेयर करके हमें 30 डिग्री पे बताना है कि क्या बचा है। ठीक है, सो इस पे ऑपोजिट केस है, लोअर कोलिजन रेट है 30 डिग्री पे और कोलिजन एनर्जी भी लोअर है, ऑप्शन डी। और ए वाला जो था मैंने वो 50 डिग्री सेल्सियस के रेफरेंस से बताया था, सो इधर ऑप्शन डी इज करेक्ट, लोअर है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम एंड एन इक्विलिब्रियम इज रीच, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। और इक्विलिब्रियम रीच हो गया, इसका क्या मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कांस्टेंट, और जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रिवर्स रिएक्शन है वो दोनों का रेट सेम है, ठीक है। सो विच रो शोज हाउ द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम चेंजेस व्हेन द प्रेशर और टेम्परेचर इज चेंज। जब हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो उससे हमारी यील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन सेम है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन किसका? दोनों रेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, फॉरवर्ड रेट भी और बैकवर्ड रेट भी, सही है। और सिमिलरली अगर हम डिक्रीज कर देते हैं तो उससे भी दोनों के रेट्स डिक्रीज हो जाएंगे। सो मतलब इक्विलिब्रियम भी स्टैब्लिश रहेगा, सो देयर इज नो चेंज, राइट। उसके बाद चेंज इन प्रेशर। अब चेंज इन प्रेशर के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है, इंक्रीज की या डिक्रीज की। उसके अगेंस्ट हमने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन देखी। अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास वही ऑप्शन है डिक्रीज की, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारे पास हाइड्रोजन क्या है, प्रोडक्ट। अब हमने देखना है कि प्रोडक्ट हमारे पास प्रेशर में हम क्या चेंज करेंगे कि प्रोडक्ट जो यील्ड है वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे कितने मोल्स है, 1 + 1 2 मोल्स, यहाँ पे कितने 1 + 3 4 मोल्स। तो क्या रेशो बन गई 1:2, राइट। प्रोडक्ट साइड पे 2 है, रिएक्टेंट साइड पे 1 मोल है, ठीक है। सो अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करती हूँ सो मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। इट मींस के रिवर्स रिएक्शन फेवर हो जाएगा, राइट, क्योंकि लेस मोल इस साइड पे ना रिएक्टेंट साइड पे। सो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन क्योंकि प्रोडक्ट और वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, सो उसकी यील्ड डिक्रीज हो रही है। सो चेंज इन प्रेशर इंक्रीज इन प्रेशर से हो रहा है। अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करती हूँ सो इट मींस कि मेरा इक्विलिब्रियम है वो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ग्रेटर मोल्स कितने प्रोडक्ट साइड पे, इस हिसाब से हाइड्रोजन की यील्ड क्या होनी चाहिए थी, इंक्रीज, लेकिन इन्होंने डिक्रीज वाली ऑप्शन दिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Now, question number 130. When aqueous iron 2 chloride is added to aqueous potassium iodide, a chemical reaction occurs and iodine is formed. Okay, iron 3 chloride, Fe 3 positive हो गया 3 और chloride Cl होता है, so it's FeCl3 plus aqueous potassium iodide होता है Ki. Okay, a chemical reaction occurs and iodine is formed. इसमें क्या फॉर्म होगा, I2 फॉर्म हो जाएगा। ओके, सो ओके, अभी हम सिर्फ आयोडीन के हवाले से देख रहे हैं जो उन्होंने हमें दिया हुआ है। सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? आयोडाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, इन दोनों की हम बात नहीं कर सकते, आयरन 2 क्लोराइड की, ठीक है, और नीदर आयोडाइड आयंस और ये इसकी हम बात नहीं कर सकते। ओके, हम अभी सिर्फ आयोडाइड आयंस की बात करेंगे क्योंकि हमको इस तरह से मिला है, ठीक है। इधर हमारे पास आयोडीन की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या है, माइनस, क्योंकि मैंने ये निकाला इस तरह से, के पॉजिटिव होता है, आई नेगेटिव होता है, इस हिसाब से क्या बन गया, यहाँ पे आयोडीन की जो स्टेट है वो आई नेगेटिव है, और यहाँ पे एज एलिमेंटल फॉर्म है तो 0 है। तो मेरे पास ऑक्सीडेशन चेंज किया फ्रॉम -1 to from -1 to 0. It means कि क्या है, -1 से 0 इंक्रीज है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेटस, ऑक्सीडेशन। सो आयोडाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड, आयोडाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड। ये दोनों बातें करेक्ट हो गई। और ऑक्सीडाइज क्यों हुई? बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। नो, ये तो रिडक्शन वाली बात हो गई। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो दिस इज करेक्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है बी। Then question 131. In the Haber's process, nitrogen and hydrogen are reacted to make ammonia. The forward reaction is exothermic, which conditions produce the maximum yield. अब यहाँ yield की बात है, रेट की बात नहीं है। सो exothermic reaction में हम लो टेम्परेचर रखते हैं मैक्सिमम yield के लिए। प्रेशर मुझे फिर से मोल्स देखने पड़ेंगे, 1 + 3 is 4, यहाँ पे 2 आ गए, so 2:1 की रेशो। अब मैं अगर प्रेशर इंक्रीज करती हूँ तो लेस नंबर ऑफ मोल्स मेरे प्रोडक्ट साइड पे, सो प्रेशर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो रहा है, ग्रेटर yield ऑफ अमोनिया मिल जाएगी मुझे। सो आई टेक हायर प्रेशर, इट्स ऑप्शन बी, यानी टेम्परेचर लो रखना एंड प्रेशर हाई। क्वेश्चन नंबर 132. One of the reactions used in the manufacture of sulfuric acid is shown, ये कौन सा है, contact process. Okay, which catalyst is used to increase the rate of this reaction? तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, वेनेडियम 5 ऑक्साइड। ओके, आयरन हमारे पास हेबर्स प्रोसेस में यूज़ होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, aluminium metal reacts with iron 2 oxide to form aluminium oxide and iron. Which chemical equation for the reaction between aluminium and iron 3 oxide is correct? पहले तो मुझे iron 3 oxide का फॉर्मूला जानना है कि इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है। 3 टाइप की ना मेरे पास, सो अब मैं पहले वो देखती हूँ। सो iron 3 oxide Fe 3 पॉजिटिव, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन का जो आयन, ये कैंसिल हो गया, ऑपोजिट साइन से भी Fe2O3। सो ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए क्योंकि इधर फॉर्मूला ही रॉन्ग है। ओके, अब मुझे बैलेंसिंग चेक करनी है क्योंकि बाकी सब कुछ ठीक है, सही है। सो Fe2 यहाँ भी, यहाँ 1 Fe है, सो ये तो बैलेंस नहीं हुआ। Fe2 यहाँ 2 Fe, फिर 3 ऑक्सीजन 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम। सो दिस इज करेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Next question is, the Haber's process is a reversible reaction. Okay, the reaction has 30% yield of ammonia. ये वो, ये जो मैंने अभी सारा पूरा सॉल्व किया था, इसका आंसर क्या था 3600। ओके, 12,000 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास आई थी थ्योरेटिकल यील्ड, जो मैंने ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट की थी। उसके बाद जो मेरे पास 30% ऑफ दैट थ्योरेटिकल यील्ड था वो 3600 था, जो मेरे पास एक्चुअल यील्ड आ रही थी, ठीक है। सो ये ए था, ये मैं पहले कर चुकी हूँ। देन क्वेश्चन नंबर 135. A chemical reaction occurs when the reacting particles collide. Okay, which reaction conditions would produce the greatest rate of particle collisions? Rate की बात हो रही है, okay, इसमें एनर्जी की बात नहीं हो रही। सो concentration of acid, yes, concentration of acids increase the rate of reaction. Okay, then reaction temperature अगर हम increase कर रहे हैं, ठीक है, so it will also increase the rate of reaction, ठीक है, so option C is correct. Question number 136. In which tube is a physical change taking place? आयरन नेल को वाटर में डाले, यहाँ पे क्या होगी, रस्टिंग होगी, रस्ट फॉर्म होगी, एंड रस्ट जो होती है ओके वो होती है केमिकल चेंज की वजह से। सो दिस इज रॉन्ग, सॉरी मैंने क्या किया, दिस इज रॉन्ग, ये ऑप्शन नहीं है, हमने करेक्ट बताया था फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज। फिर वाटर के अंदर हमने सोडियम क्लोराइड डाला है, सोडियम क्लोराइड इज सोल्यूबल सॉल्ट को डिसॉल्व हो जाएगा, उसके बाद हम उसे किस तरह से वापस सॉलिडिफाई कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म करेंगे इवेपोरेट करवा के वाटर को। सो इस हिसाब से क्या हुआ, ये तो वो है ना फिजिकल चेंज, डिसॉल्विंग फिजिकल चेंज। फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम, यानी हम मेटल प्लस एसिड वाला रिएक्शन करवा रहे हैं, सो इससे क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी, वो तो एस्केप हो गई, उसको कैसे रिवर्स करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। देन ये मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी मेटल कार्बोनेट विद एसिड वाला रिएक्शन है, इससे हमारे पास होगा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉल्ट। सो अगेन दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, एंड बी जो था वो फिजिकल रिएक्शन है क्योंकि वो रिवर्सिबल है। देन क्वेश्चन नंबर 137. At room temperature, the conversion of nitrogen dioxide NO2 into dinitrogen tetroxide N2O4 is reversible. Room temperature पे the forward reaction is exothermic. Which changes cause the equilibrium to shift to the left?
ये राइट साइड होती है मेरी, ओके, एंड दिस इज लेफ्ट साइड. सो लेफ्ट पे अगर हमने इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करवाना है, मीन्स कि कौन सा फैक्टर है जो रिवर्स रिएक्शन को फेवर करवाएगा, फ्रॉम N2O4 टू NO2, यानी कलरलेस गैस को ब्राउन गैस में कन्वर्ट करवाएगा. सो मैं पहले मोल्स चेक कर लेती हूँ. इधर 2 मोल्स है, इधर 1 मोल है. ओके, अब मुझे बैकवर्ड रिएक्शन फेवर कराना है. जो मोल का रिलेशन होता है प्रेशर के साथ, ये होता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स. यानी अगर मुझे प्रेशर में इंक्रीज करती हूँ, ओके, सो वो कम नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे शिफ्ट हो जाता है इक्विलिब्रियम जो है, ठीक है. अब मुझे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे, इस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करवाना है, तो मैं क्या करूँगी, प्रेशर को डिक्रीज कर दूँगी ताकि वो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है. सो डिक्रीज करूँगी प्रेशर को. क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, तो इट मीन्स कि रिवर्स रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है. एंडोथर्मिक के अंदर मैं प्रेशर इंक्रीज करती हूँ तो क्या होता है, रिएक्शन फेवर होता है, ओके, इंक्रीज हो जाता है. अगर एक्सोथर्मिक की बात करें तो इसमें टेम्परेचर डिक्रीज करने से फेवर होता है फॉरवर्ड रिएक्शन. सो आंसर इज बी. Then question number 138. The equation for the reaction between zinc and aqueous copper 2 sulfate is shown. Which statement is correct? ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में इसकी 0. बाकी दो की मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ क्योंकि उन्होंने आगे इसी बारे में बात की है. सो इसके लिए आई नीड पीरियोडिक टेबल, नहीं पीरियोडिक टेबल नहीं, सॉरी. कॉपर की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जिंक की भी. सो कॉपर की हो जाएगी x/1 प्लस, क्योंकि 1 टाइम है, ठीक है. सल्फर मेरे पास होता है ग्रुप नंबर 6 है, तो उसकी होती है -2. यस, सो -2 इंटू अगेन 1, तो ये फिर हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन -2 इंटू 4 इज इक्वल टू जो पूरे इसका चार्ज है 0. सो x प्लस क्या हो गया -2 इंटू 1, -2 प्लस अगेन ये क्या हो गया -2 इंटू 4 इज -8 इज इक्वल टू 0. सो ये क्या हो गया x प्लस -2 इज -2 प्लस -8 इज -8 इज इक्वल टू 0. सो ये क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें. लेट मी ट्राई इट अगेन. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अच्छा पहले मैं देख लेती हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, लेकिन उसके लिए वही बात मुझे दोबारा से वो देखनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ओके, इसमें मैं एक और हाँ, मैं सल्फेट आयन अगर कंबाइंड फॉर्म में ले लूँ, लेट्स डू इट. अभी रीजन नहीं मिलेगा, एक मैं इसको कट कर देती हूँ. इसको ऐसे कर लेते हैं. सल्फेट आयन क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव. अगर मैं इसको कॉपर 2 पॉजिटिव लूँ तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट होकर क्या बना, CuSO4. सो यस, इसका मतलब इसकी +2 थी कॉपर की यहाँ पे, ठीक है. मैं इस तरह से करी, मुझे समझ आया दूसरा मैं क्या करूँ. सेम इज द केस ओवर हियर, जिंक ZnSO4, तो फिर ये ना CuSO4, इसका भी +2 हो गया और ये दोनों 0 0 हो गए. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, जो खुद रिड्यूस हुआ है दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है. रिडक्शन किसमें हुई है, कॉपर में. क्यों, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन. और सेम इज द केस विद जिंक, उसमें क्या हुई ऑक्सीडेशन, क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 0 टू +2, सो इट्स ऑक्सीडेशन. अब इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, जिंक. ये जो है कॉपर, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि खुद रिड्यूस हुआ दूसरे को ऑक्सीडाइज करा है. और ये जो है जिंक, ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हुआ दूसरे को रिड्यूस करा है. अब हम देखते हैं द ऑक्सीडेशन स्टेट, करेक्ट वाली बताएंगे, ठीक है. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैज चेंज फ्रॉम 0 टू +2. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये था, इसकी +2 से 0 हुई है, दिस इज रॉन्ग. इन्होंने कहा 0 टू +2, ठीक है. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट हैज चेंज फ्रॉम 0 टू +2. reducing agent has changed from 0 to +2. Yes, zinc is the ये क्या है, reducing agent इसकी change है from 0 to +2. This is correct. Option B हो गया. Then the oxidation state of the reducing agent has changed from +2 to 0. Reducing agent क्या था, zinc था, इसकी +2 से 0 नहीं हुई. Then last option we have is के this is not a redox reaction. The solution changes from blue to colorless. No, this is a redox reaction. क्यों, क्योंकि इसमें reduction और oxidation simultaneously take place कर रही हैं. Okay, so this is wrong and only option B is correct. Question number 139. Hydrogen and nitrogen react to form ammonia in the Haber's process. Forward reaction is exothermic. Which statement about the process are correct? Nitrogen is obtained from air. Yes, हम उसको liquefy करके fractional distillation perform करते हैं. Then increasing the temperature of reaction increases the yield of ammonia. अब yield of ammonia की बात हो रही है, product yield की बात हो रही है, तो हमने exothermic या endothermic देखना होता है. अगर ये exothermic है तो temperature increase करने से क्या होता है, backward reaction यानी reverse reaction favor हो जाता है, right? So it means कि इसकी yield decrease हो जाती है और ये जो reactants हैं ये increase हो जाते हैं. So this is wrong. Increasing the reaction pressure increases the yield of ammonia. जहाँ pressure का नाम आया वहाँ हमने moles check करने हैं. 1 + 3 is 4. यहाँ पे क्या आ गया 2. So यहाँ क्या रेशो बनी 2:1. प्रोडक्ट साइड पे 1, रिएक्टेंट साइड पे 2. तो अब मेरे पास रिलेशन क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स. अगर मुझे प्रोडक्ट की यील्ड इंक्रीज करनी है तो प्रोडक्ट की यील्ड इंक्रीज करनी है जहाँ नंबर और उस साइड पे क्या नंबर ऑफ मोल्स कम है. इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज करने से मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा. इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस साइड, जो प्रोडक्ट साइड है, ठीक है, राइट साइड. तो इंक्रीजिंग द रिएक्शन प्रेशर इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ अमोनिया. यस, जब मैं प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ तो इक्विलिब्रियम इस साइड पे शिफ्ट हो रहा है, लेस नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे. सो यस, यील्ड ऑफ अमोनिया इंक्रीज हो रही है. Vanadium 5 oxide is used as a catalyst. No, हम इसमें आयरन को यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट इन द हेबर्स प्रोसेस. सो 1 and 3 करेक्ट हैं. 1 and 3 इट्स ऑप्शन बी. Next question. Oh, okay. Ethene reacts with hydrogen to form ethane. The bond energies are shown in the table. What is the energy change for the reaction? Energy change होता क्या है? Energy change means एनर्जी चेंज होता है डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज. ओके, सो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट्स एनर्जी माइनस प्रोडक्ट एनर्जी. ठीक है, सो उसके लिए हम पहले इनके बॉन्ड्स देखते हुए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जीज फाइंड आउट करेंगे इंडिविजुअली और फिर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं. सो मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देती हूँ इधर, ठीक है. सो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करी हूँ रिएक्टेंट एनर्जी, रिएक्टेंट्स की एनर्जी, ठीक है. रिएक्टेंट्स एनर्जी इज इक्वल्स टू, मेरे पास एक ये वाला बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड सी, सो ये हो गया 614 प्लस मेरे पास 4 ये बॉन्ड है सी एच बॉन्ड्स. ओके, 4 सी एच बॉन्ड्स, सो ये सी एच 4 × 410 प्लस एक मेरे पास एच एच बॉन्ड है, एच एच बॉन्ड की 436. सो अब मैं इसे कैलकुलेट कर लेती हूँ. 614 प्लस 4 × 410 इज 1640 प्लस 436. तीनों को ऐड कर लेते हैं. 1640 प्लस 436 प्लस 614, ये टोटल कितनी आ गई 2690 किलो जॉल्स. ये एनर्जी आई है मेरे पास, ठीक है, किलो जॉल पर मोल. ओके, अब मुझे प्रोडक्ट की एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है. सो प्रोडक्ट एनर्जी इज इक्वल्स टू, एक ये बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये हो गया 350 प्लस 6 मेरे पास 1 2 3 4 5 6 मेरे पास सी एच बॉन्ड्स हैं.
सो 6 इंटू सी एच ये है 410. ओके दिस इज इक्वल टू 350 प्लस 410 इंटू 6 इज 2460. ठीक है एंड प्लस 350 हो जाएगा 2810 किलो जॉल पर मोल. ये मेरे पास प्रोडक्ट्स की एनर्जी आ गई. इसके अलावा मेरे पास कोई बॉन्ड्स नहीं थे. ठीक है अब मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ. डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट एनर्जी माइनस प्रोडक्ट एनर्जी. रिएक्टेंट वाज 2690 माइनस प्रोडक्ट वाज 2810. ठीक है सो इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है माइनस 120 किलो जॉल्स पर मोल विच इज़ ऑप्शन बी. और इसके डेल्टा एच से एंथैल्पी चेंज से हमें क्या पता चल रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन है एक्सोथर्मिक. नेक्स्ट क्वेश्चन अ साइन डिस्प्लेड इन अ फ्लोर मिल इज शोन. ये साइन है एक्सप्लोजन हैजर्ड नो स्मोकिंग नो ओपन फ्लेम्स. यानी इधर कुछ ऐसा है जो बहुत जल्दी फायर के साथ रिएक्ट कर जाता है. ठीक है फायर कैच कर लेता है. विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई देयर इज अ डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन इन अ फ्लावर मिल. फ्लावर का सरफेस एरिया कितना ज़्यादा होता है राइट. छोटा छोटा पाउडर होता है वो. फ्लावर बर्न्स वेरी क्विकली बिकॉज इट इज अ फाइन पाउडर. इसलिए मैंने बिकॉज का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है. फ्लावर इज अ कैटलिस्ट फॉर कंबस्शन. ऐसी तो कोई बात नहीं है. फ्लावर मिल्स गेट हॉट एंड स्पीड अप द रेट ऑफ कंबस्शन. नो द कंबस्शन ऑफ फ्लावर इज एक्सोथर्मिक. हमें क्या पता कि क्या है. दिस इज रॉन्ग. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 142. A student investigates the effect of concentration on the rate of reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid. Okay, so he follows the method shown. Place 1 gram of calcium carbonate in a conical flask. Add excess hydrochloric acid. Let the reaction continue until more gas is made. Repeat the experiment with different concentrations. हम concentration का effect देख रहे हैं, बाकी सब कुछ constant रखना है. Which essential step has been left out of the method if he's to work out the rate of reaction? Rate of reaction क्या होता है? अब यहाँ हम किस चीज़ पे देख रहे हैं? Let the reaction continue. So volume of gas produced per जो भी टाइम है पर टाइम. ठीक है पर मिनट हो सकता है जो भी. तो इन्होंने टाइम क्यों नहीं मेजर किया. हम तो रेट देख रहे हैं. रेट होता ही है. हमने देखना है कि क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है कितने टाइम में. सो टाइम इज एसेंशियल. अब हम देखते हैं ऑप्शंस को. हीटिंग दी रिएक्शन मिक्सचर. तो हीट हमें नहीं करना था. प्लेसिंग अ बंग इन द फ्लास्क. अगर हम बंग लगा देंगे यानी स्टॉपर लगा देते हैं फ्लास्क को तो गैस कैसे स्किप करेगी या हम गैस कैसे कलेक्ट करेंगे जो भी. टाइमिंग द रिएक्शन यस दिस इज करेक्ट. हमने टाइम नहीं किया. हमने मेजर ही नहीं किया टाइम कितने टाइम में. यूजिंग अ कैटलिस्ट इज नॉट एसेंशियल एट ऑल. जरूरी नहीं है कि हम कैटलिस्ट यूज़ करें. इनफैक्ट वो तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उन्हें ऑथेंटिक नहीं रहने देगा. वो तो स्पीड अप करवा देगा रिएक्शन को. हम फिर इफेक्ट कैसे देखेंगे कंसंट्रेशन का. है ammonia is manufactured using the Haber's process. Which statement about this process is correct? The catalyst used for this reaction is vanadium pentoxide यानी vanadium 5 ऑक्साइड. ये तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है. सो दिस इज रॉन्ग. इधर हम आयरन यूज करते हैं. The hydrogen used is extracted from air. No हम हाइड्रोकार्बन से लेते हैं जैसे मीथेन नेचुरल गैस से. Using a high pressure increases the yield of ammonia. ओके इसमें हमारे पास हमेशा क्या रेशो आती है 2:1 की रेशो आती है. प्रोडक्ट साइड पर 1 होता है यानी 4:2 की होती है ना. लेकिन हम उसको जब सिंप्लीफाई कर देते हैं फर्दर डिवाइड बाय 2 करके ये रिएक्टेंट साइड है. रिएक्टेंट साइड पे ज़्यादा मोल्स है प्रोडक्ट साइड पे कम मोल्स है. मोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ठीक है सो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर लूँ इट मीन्स कि इक्विलिब्रियम जो है लेस नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे शिफ्ट हो रहा है. लेस नंबर ऑफ मोल्स किधर है प्रोडक्ट साइड पे. सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू दिस साइड. यील्ड ऑफ अमोनिया इंक्रीज हो जाएगी. सो यस दिस इज करेक्ट. यूजिंग अ हाई टेंपरेचर इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ अमोनिया. क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है एक्सोथर्मिक होता है. तो जब हम लेस टेंपरेचर यूज़ करेंगे ना लोअर टेंपरेचर तो उससे यील्ड इंक्रीज होती है. अगर हम हाई टेंपरेचर यूज़ करेंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो फेवर होना स्टार्ट हो जाता है. सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. Question number 144. The reaction between sulfur dioxide and oxygen is shown. ये क्या हो रहा है contact process. The reaction is exothermic. Which of the changes shifts the position of equilibrium to the right? ये मेरा right है और ये है left. तो हमने right पे shift कराने equilibrium means product side. Okay. Okay. Increase the concentration of oxygen. Oxygen कहाँ है reactant में. मैंने बताया था कि concentration of reactant is directly proportional to the concentration of product. तो अगर हम reactant की concentration increase करते हैं so it means कि हमारे पास product की concentration भी increase हो जाती है. ज़्यादा reactant डालेंगे तो ज़्यादा product मिलेगा. This is correct. इंक्रीज दी प्रेशर. प्रेशर के लिए हमें ऑलवेज हमें वो देखनी होती है नंबर ऑफ मोल्स. यहाँ पे 2+1 कितना होगा 3. यहाँ 2. अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम लेस नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे शिफ्ट हो जाता है जो कि प्रोडक्ट साइड पे राइट. सो इसकी हमें ज़्यादा यील्ड मिलेगी. यस दिस इज करेक्ट. यस राइट पे शिफ्ट हो जाएगा. इंक्रीज दी टेंपरेचर नो क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. इंक्रीजिंग दी टेंपरेचर वुड शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट क्योंकि रिवर्स रिएक्शन फेवर हो जाएगा जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है. सो इसकी करेक्ट ऑप्शन 1 and 2 है यानी आंसर इज बी. देन nitrogen N2 and hydrogen H2 can be converted into ammonia using a catalyst. Haber's process हो रहा है. What is the purpose of the catalyst? To increase the amount of ammonia produced. No. जब भी हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो yield जो प्रोडक्ट yield होती है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता. कोई इफेक्ट नहीं आता. वो सिर्फ रेट को स्पीड अप करती है. यानी जो चीज़ हमें देर से मिलनी होती है प्रोडक्ट मतलब जो हमें प्रोडक्ट देर से मिल रहा होता है ये बस जल्दी जल्दी रिएक्शन खत्म करवा के वो हमें पहले मिल जाता है और इसका कोई पर्पस नहीं है. टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन यस दिस इज द ओनली पर्पस